میں اور غیر کسی تاخیر نے گزارش کروں گا طارق ابرار صاحب کے پہ آ گئے اپنا خیالات ہوئے. آداب، السلام علیکم. میرے جو ریسرچ پیپر کا ٹاپک ہے وہ ہے گوجری میں ترجمہ نگاری کی صورتحال. یہ کافی بڑا ہے. میں ٹاپک کو تھوڑا سا مختصر کروں گا اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. کیونکہ وقت کی کمی ہے تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. کسی بھی زبان سے دوسری زبان میں جذبات، احساسات، خیالات، علوم و فنون کے بارے میں معلومات اور دوسرے کسی بھی طرح کے امور اور معانی کو ادا کرنے کا نام ترجمہ ہے. اردو سے فارسی میں ترجمہ کا لفظ عربی سے آیا ہے، جبکہ ٹرانسلیشن کا لفظ مغرب کی جدید زبانوں میں لاطینی زبان سے آیا ہے، یعنی لیٹن زبان سے آیا ہے، اور اس کے لغوی معنی پار لے جانے کے ہیں. ترجمہ دراصل وہ وسیلہ یا ذریعہ ہے جو ایک زبان کے علمی، ادبی یا دوسری کسی بھی طرح کے تحریری سرمایہ کو دوسری زبان میں منتقل کرتا ہے. تحقیق کرنے سے ترجمے کی مختلف تعریفیں ملتی ہیں. ویکیپیڈیا میں ترجمہ کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے: ایک written communication in a second language having the same meaning as the written communication in a first language. جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو میں ترجمہ نگاری کی روایت کی شروعات 19ویں صدی کے آغاز میں ہوئی. اسی طرح گوجری زبان میں ترجمہ نگاری کی روایت کی باقاعدہ شروعات 1978 میں اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز میں گوجری شعبہ قائم ہونے کے ساتھ ہی ہوئی. اردو کے مقابلے میں گوجری زبان میں ترجمے کی روایت کی شروعات کافی دیر کے بعد ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اردو کے مقابلے میں گوجری زبان ترجمہ نگاری کے میدان میں ابھی تھوڑی پیچھے ہے، لیکن جو کام ہوا ہے وہ بہت ہی معیاری اور تسلی بخش ہوا ہے. ترجمہ نگاروں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اردو، عربی، فارسی، انگریزی اور سنسکرت کی عالمی شہرت یافتہ کتابوں کو دوسری گوجری زبان میں ترجمہ کر کے گوجری ادب کو وسعت دیں، تاکہ گوجری زبان میں دوسری اہم زبانوں کو بھی دوسری اہم زبانوں کے ہم پلہ پڑھنے کی طرف اپنا قدم بڑھانے میں کامیابی حاصل ہو سکے. اور جن ترجمہ نگاروں نے مختلف کتابوں کو گوجری میں ترجمہ کیا ہے ان میں محمد منشا خاکی صاحب، نسیم منشی صاحب، انور حسین، ڈاکٹر جاوید راہی، حسن پرویز صاحب، ڈاکٹر شاہ نواز صاحب، عبدالغنی عارف صاحب، مولانا مفتی فیض الوحید صاحب، پرویز اختر، مولانا عابد حسین، ڈاکٹر رفیق احمد آوان صاحب، مفتی نذیر احمد قادری صاحب، جان محمد حکیم صاحب، مولانا امین مدنی، مشتاق خالد چودھری صاحب، ناچیز طارق ابرار، غلام مصطفیٰ گجران وغیرہ کے نام شامل ہیں. گوجری کو وسعت دینے والے ترجمہ نگاروں کی فہرست زیادہ لمبی نہیں ہے، لیکن عربی، فارسی، انگریزی اور اردو زبانوں کی جن اعلیٰ پایہ کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا ہے ان کی ضخامت کو دیکھنے سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ان ترجمہ نگاروں نے کس قدر انگریزی سے کام لے کر گوجری زبان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ابھی تک کوششوں میں یہ ترجمہ نگار مصروف ہیں. ان ترجمہ نگاروں نے ترجموں کے ذریعے دوسری زبانوں اور علم و ادب کا لین دین کر کے نہ صرف گوجری کے ادبی ذخیرے کو امیر کیا ہے بلکہ گوجری زبان کے قارئین کو دوسری زبانوں کے ادب سے بھی واقف کروایا ہے. ان تمام ترجمہ نگاروں سے متعلق تمام تفصیلات ہیں، لیکن میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بریف کر رہا ہوں. لیکن اس میں ایک نام میں جان محمد حکیم صاحب سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں.
गोजरी ज़बान के मशहूर शायर और तर्जमाकार जान मोहम्मद हकीम, जो इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान भी हैं, का तर्जमा निगारी में भी अहम काम है, जिसे काफ़ी मकबूलियत से हासिल हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जहाँ एक तरफ तर्जमा निगारों के जरिए दूसरी ज़बान का अदब गोजरी ज़बान में मुंतकिल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ गोजरी अदब का तबादला दूसरी ज़बानों में नहीं हो रहा था। जान मोहम्मद हकीम साहब ने मुंतखबा गोजरी नज़्मों का मंजूम तर्जमा करके देवनागरी रस्म खत के जरिए हिंदी में पहली किताब शाया की है, जिसे एक तारीखी पहल गोजरी अदब की तरक्की की राहें इस्तेमाल करने और रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन तस्वर किया जाए तो ये गलत ना होगा। इमाम गोजरी पीता है किताब फरवरी 2023 में वर्ल्ड बुक फेयर इंडिया नई दिल्ली में रिलीज की गई। झारखंडी खाखरा और करकटा फाउंडेशन के ताबन से ये किताब शाया हुई और इस किताब की मकबूलियत और इंफरादियत के पेश नज़र इसे साउथ कोरिया में होने वाली वर्ल्ड बुक फेयर के लिए भी मुंतकिल किया गया है। इसमें जान मोहम्मद हकीम साहब ने मुंतखबा गोजरी शोरा कराम के कलाम का मंजूम तर्जमा पेश करके न सिर्फ हिंदी अदब को गोजरी अदब से रोशनास कराया है, बल्कि गोजरी शायरी के मियार से भी हिंदी अदब के कारिन को वाकिफ करवाया है। तर्जमा निगार ने ऐसे शोरा कराम का इंतखाब किया है जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए कबायली समाज की भरपूर अक्कासी की है। जान मोहम्मद हकीम और इनसे मुतासर होने वाले गोजरी अदीबों से उम्मीद की जा सकती है कि वो गोजरी अदब का दुनिया की हर ज़बान में मुंतकिल लिटरेचर जो है मुंतकिल करने के सिलसिले में गोजरी की तरक्की के सफ़र में अपना भरपूर रोल अदा करेंगे। मौसूफ ने इससे पहले भी कुछ किताबों का हिंदी से उर्दू में तर्जमा किया है। मैं एक नुक्ता यहाँ पे वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अब तक जो है लिटरेचर दूसरी ज़बानों से गोजरी में आया है, लेकिन गोजरी से दूसरी ज़बानों में बहुत कम गया है। और मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो हकीम साहब ने ये शुरुआत की है, तो जहाँ आज ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइटर्स एक साथ बैठे हुए हैं तो इस चीज़ की अहमियत को बहुत बखूबी समझते हैं। और बाहर हम बात भी प्रोफेसर साहब कर रहे थे कि जब तक हमारा लिटरेचर दूसरी स्क्रिप्ट्स में नहीं जाएगा तो हमारा अदब जो है सिर्फ एक ही लिपि तक, एक ही रस्म खत तक महदूद रहेगा। मैंने जितने भी तर्जमा निगारों के नाम बताए उन्होंने बहुत काम किया है और उनकी एक किताब ही अगर आप देखेंगे जो ट्रांसलेट की है वो 500 से 700 क्या कहते हैं सफ़ात की होगी। मतलब मेरे ख्याल से 50 से 70 के बीच में किताबें ट्रांसलेट हो चुकी हैं, लेकिन उनका जो ज़खीरा है वो बहुत बड़ा है। तो इस कंक्लूजन के लिए मैंने कुछ सजेशंस दिए हैं और क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि कौमों और ज़बानों की तरक्की में तर्जमा बहुत अहम रोल अदा करता है। यही वो वसीला होता है जिसके ज़रिए दूसरी ज़बानों में मौजूद इल्म व फ़नून तक एक ऐसे शख्स की पहुँच भी मुमकिन हो जाती है जो शख्स अपनी मादरी ज़बान के अलावा कोई दूसरी ज़बान नहीं जानता है। अगर कोई मुतरजम इस शख्स की मादरी ज़बान में दूसरी ज़बानों से तर्जमा कर दे तो वो फिर वो भी नए अलूम और इनकी बारीकियों से वाकिफ हो सकता है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ना सिर्फ गोजरी बल्कि हर एक ज़बान की मकबूलियत का राज इस बात में छुपा हुआ है कि इसमें अलूम व फ़नून की कितनी किताबें मौजूद हैं और इसमें कितनी ज़बानों की किताबें तर्जमा हो चुकी हैं। गोजरी ज़बान में तर्जुमा निगारी के हवाले से अगर ये कहा जाए कि गोजरी अभी तक इब्तदाई मरहलों में है तो गलत ना होगा। अदाद शुमार के एतबार से अभी तक दूसरी ज़बानों से गोजरी ज़बान में 50 से 70 के करीब ही किताबों का तर्जुमा हुआ है, जो ये बात जाहिर करती है कि गोजरी में तर्जुमा निगारी की सूरत किसी हद तक इत्मीनान बख्श तो है, लेकिन गोजरी को दूसरी ज़बानों के मुकाबले में खड़ा करने के लिए अभी इसमें काम करने की गुंजाइश बाकी है और इसमें मज़ीद काम हो भी रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जितने भी नए राइटर्स ट्रांसलेशंस के काम पर जो है तवज्जो दे रहे हैं। एक बात मैंने शिद्दत से महसूस की है कि जहाँ उर्दू, पर्शियन, अरबी और अंग्रेज़ी वगैरह से अदब का तबादला तर्जमे की सूरत में गोजरी में हुआ है, वहाँ
पंजाबी, डोगरी और हिंदी वगैरह ज़बानों से इतना ज़्यादा तर्जुमा गोजरी में नहीं हुआ है, जिस पर मुझे उम्मीद है कि तर्जुमा निगार इस पहलू पर भी गौर करेंगे। एक बात और ये कि गोजरी की किताबों को देवनागरी रस्मुल खत में तर्जुमा होना वक्त की सख्त ज़रूरत है। इस सिलसिले में जहाँ साहब ने पहले ही शानदार पहल की है, जिससे देवनागरी रस्मुल खत में गोजरी लिटरेचर मुंतकिल होने की राहें हमवार हो चुकी हैं। साथ ही इस पहलू को भी गोजरी अदीबों को मद्देनजर रखना चाहिए कि गोजरी में ऐसा आला और मियारी अदब तख्लीक किया जाए कि दूसरी ज़बानों के अदीब भी गोजरी अदब को तर्जमा करने के लिए मजबूर हों। आखिर में यही कहूँगा कि गोजरी ज़बान के अदीबों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानों की और आला दर्जा की किताबों का तर्जुमा गोजरी ज़बान में करने के लिए आगे आना चाहिए और अदारों की सतह पर बाकायदा कमेटियां बनाकर तर्जुमे की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए जाने चाहिए। अगर इस वक्त गोजरी ज़बान में अकेडमी के ज़ेर निगरानी 50 के करीब ही किताबों का तर्जुमा गोजरी में हुआ है। गोजरी की तरक्की के लिए सरगर्म सरकारी अदारे, गैर सरकारी तंजीमों और अफराद को चाहिए कि वो इस पहलू को संजीदगी के साथ लें। हालांकि इनफरादी तौर पर भी गोजरी अदीबों ने काफ़ी सारी किताबों का तर्जुमा गोजरी में किया है, जो कि अच्छी बात है और इस तर्जुमा निगार के लिए तारीफ के हकदार हैं। मेरा ये मानना है कि अगर इस वक्त 60 से 70 किताबें ही गोजरी में तर्जुमे की मौजूद हैं, आइंदा बरसों में इनकी तादाद 500 से पार करवाने का निशाना तय होना चाहिए और गोजरी दानिशवरों और लिखारियों को ज़माने की रफ्तार के साथ चलना चाहिए। और आज यहाँ जो ऑल इंडिया लेवल पर ट्राइबल राइटर्स की एक फोरम, एक मंच बनाने का तहैया किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम इस प्लेटफॉर्म से ट्रांसलेशन का हो सकता है और आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा मेन माध्यम जो है, जरिया जो है, ट्रांसलेशन हमारे लिटरेचर का रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि गोजरी लिटरेचर को दूसरी ज़बानों, खासतौर पर देवनागरी स्क्रिप्ट और अंग्रेजी में मुंतकिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है और अपनी मादरी ज़बान की खिदमत के लिए किसी भी जो है राइटर को अपनी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और मेरे गद्दी भाई यहाँ बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो वो लिखने की तरफ भी आए और अपनी इंफरादी तौर पर भी वो अपनी जो गद्याली भाषा है तो उसमें क्या सूरत-ए-हाल है, तो वो भी तहैया करें और राइटर्स के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके वो अपने लेवल पर 50 से 100 लोगों का 3 महीनों के अंदर भी कोई प्रोग्राम करें, कॉन्फ्रेंसेस करें, तो बहुत बड़ा लिटरेचर आने वाले वक्त में तैयारी में हो सकता है। लेकिन तहरीका आप जैसे लोगों ने करना है और आप जब ये तहरीका लेके समाज में लाएंगे तो आप एक पूरी कम्युनिटी को यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छी बातें की। आप जैसे लोग जो है कम्युनिटी को, अपने ट्राइब को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाने के लिए ज़ामिन हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया तारिक भाई ने बहुत ही खूबसूरती से अपना पेपर पढ़ा।